Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I again welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. As we all know, we are discussing about the burn in BSc nursing third year. In last three lectures, we are discussing about the what is burn, what is the types of burn, what is the sources of burn, how the degree affected skin is affected by burn, classified as the first degree, second degree, third degree, and fourth degree, the clinical manifestations, the diagnostic evaluations, and then the management of burn. In the management of burn, we are discussing about the we are discussing the emergent or emergent management, मतलब emergency management of burn in the first phase. The management of burn is divided in three parts. First, emergent or immediate management, second acute or intermediate management, and third rehabilitation care. First, emergent or immediate, immediately after the burn, what you do, that is considered in the immediate or emergent management, in which we are discussing that we can take the patient away from the burn source, and the objects that are connect to the patient, we remove them. Then A, B, C, D, E, we follow the this synonyms. A for airway, maintaining the airway clearance by suctioning, by exercise and coughing. So we first of all we clear the airway, and second thing, B for breathing, we maintain the breathing. C for circulation or fluid and electrolyte imbalance. D for any deformity and other any problems or any other injuries. And then E for examine and expose other things, other systematic injuries, other fracture injuries, other body part injuries. So in the emergent management, we are discussing all of this, and in this class we are discussing about the acute and intermediate management. Immediate, intermediate मतलब after the emergent management, what is done with the patient. So in the burn, we are discussing the acute and intermediate management. Intermediate and acute management is considered 14 to 72 hours after the burn injury. मतलब बर्न इंजरी के 48 घंटे से लेके 72 घंटे के बाद का जो मैनेजमेंट है वो माना जाता है, बर्न इंजरी के 48 या 72 घंटे बाद तक का जो मैनेजमेंट माना जाता है वो माना जाता है एक्यूट और इंटरमीडिएट मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपन कुछ बातों पे अटेंशन रखेंगे, जैसे असेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्टेटस, जो अपन ने पहले मेंटेन किया था फर्स्ट फेज में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयरवे, ये सब जो मेंटेन थे उनको कंटिन्यूसली असेसमेंट, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज में अपन ने कर दिया अब इसका आगे असेसमेंट या मॉनिटरिंग नहीं करनी है, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट अपना चालू रहेगा। किस किस का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी पैटर्न्स का, एयरवे का, एंड विद द सर्कुलेटरी स्टेटस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का अपन टाइम टू टाइम इनटेक आउटपुट असेस करते रहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में, वो इडीमा, ये सब चीज़ें अपन कंटिन्यूसली असेस करते रहेंगे। सेकेंड थिंग, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड जीआई फंक्शंस एंड इन्फेक्शन। जीआई फंक्शंस को असेस करते रहेंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो बर्न पेशेंट है दे आर वेरी वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, वो बहुत प्रोन होते हैं, वो बहुत रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन के, तो अपने को इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे भी फोकस करना है। इसके बाद बर्न वुंड केयर, जो बर्न से वुंड्स हुए हैं उन बर्न की वुंड केयर करनी है, जिसमें वुंड क्लीनिंग है, टॉपिकल एंटी बैक्टीरियल थेरेपी है, वुंड की ड्रेसिंग करनी है, ड्रेसिंग चेंजेज कैसे करने हैं, वुंड डेब्रिडमेंट कैसे करना है, और वुंड ग्राफ्टिंग। डेब्रिडमेंट का मतलब होता है, जैसे अपन ने बात करी थी वुंड की, तो मान लो ये कोई बर्न, ये स्किन सरफेस थी, इस पर यहाँ पे बर्न वुंड हुआ, तो इसमें जो डैमेज टिश्यूज, स्किन सेल्स, स्किन की लेयर्स जो भी हैं उन सबको, जो डैमेज्ड हैं उन सबको हटा के बाहर निकालना, ताकि उसको जो रिपेयरिंग का, वुंड हीलिंग का प्रोसेस है वो प्रमोट हो सके, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डेब्रिडमेंट। तो ये बहुत कंपलसरी है कि आप किसी वुंड को अगर कंप्लीटली हील करना चाहते हैं तो उसमें जो भी डैमेज टिश्यूज जो भी हैं, सेल्स, टिश्यूज, कोई
फॉरेन बॉडी, फॉरेन आर्टिकल, फॉरेन सब्सटेंस जो भी है उन सबको आपको एक बार क्लीन करना पड़ेगा। तो वुंड डेब्रिटमेंट करेंगे एंड वुंड ग्राफ्टिंग, वुंड के ऊपर कोई दूसरा स्किन लेयर या कोई भी सिंथेटिक लेयर अपन अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं वुंड ग्राफ्टिंग। इसके बाद पेन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड अर्ली पोजिशनिंग एंड मोबिलिटी। बर्न की वुंड हीलिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो कैसे पोजिशनिंग करनी है, बर्न पे प्रेशर ना हो, जो वुंड हुआ उस पर प्रेशर ना हो, बर्न साइट है उसको कैसे मेंटेन करना है और मोबिलिटी कैसे स्टार्ट करनी है। तो ये सब चीज़ें अपन द एक्यूट एंड इंटरमीडिएट फेज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ मैनेजमेंट, इन द सेकेंड फेज ऑफ मैनेजमेंट द पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस इन आर कॉमन इन बर्न इंजरी। क्या होता है कई बार जो नर्सेज या डॉक्टर्स अगर कोई ध्यान नहीं देते हैं या किसी चीज़ को मिस कर देते हैं तो उसकी वजह से रेस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन, जैसे मान लो किसी को पल्मोनरी एडिमा हो रखा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सक्शन नहीं हुआ, तो वो पेशेंट में भी पल्मोनरी डिस्टर्बेंस हो सकता है या रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, लंग्स फेलियर हो सकता है, ARDS हो सकता है, एक्यूट रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। तो मे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है रिलेटेड टू रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो अपने को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी है उसका एयरवे, उसका ब्रीदिंग पैटर्न और साथ में ऑक्सीजन सेचुरेशन, ताकि अपने को पता चलता रहे। ABG एनालिसिस करते रहेंगे ताकि अपने को पता चलता रहे कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली बना हुआ है या नहीं है। तो सबसे पहले अपना मैनेजमेंट इस पे फोकस होगा, जो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस है उनको अपने को अवॉइड करना है। इसके अलावा एयर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय अपर वे एडिमा, जो कि बाद में डेवलप होती है आफ्टर 48 आवर्स, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्न इंजरी ये नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सेल्स, डैमेज सेल्स थी उनमें इम्पेयरमेंट आएगा, चेंजेज आएंगे, तो उसकी वजह से स्लोली क्या है एडिमा डेवलप हो सकता है पल्मोनरी एयरवे के अंदर या अपर एयरवे के अंदर। तो अपने को उसका भी ध्यान रखना है कि उसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो सके। इसके बाद एक्सरे और ABG कंटिन्यूसली अपने को, और डायरेक्ट ब्रोंकोस्कोपी, ताकि अपन पता लगा सकें कितना सीवियर इंजरी है, कितनी कॉम्प्लिकेशंस को अपने को हैंडल करना है। तो उसके लिए अपने को एक्सरे करके देख सकते हैं कि इंटरनल इंजरी तो नहीं है, कोई रिब्स फ्रैक्चर या कोई और, क्योंकि अब बर्न है तो मे भी पेशेंट फॉल भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी कोई भी अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो अपने को एक्सरे, ABG एनालिसिस, जिससे अपने को, जैसे मान लो कोई पेशेंट है उसको इनहेलेशन इंजरी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिया था तो बॉडी के अंदर कार्बोक्सीमोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, PaCO2 कम बढ़ जाएगा, PaO2 कम हो जाएगा, तो उससे अपने को आइडिया लग सकता है कि पेशेंट किस कंडीशन में है। तो ABG कर सकते हैं और ब्रोंकोस्कोपी से अपन अंदर जो लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम है, उसको विजुअलाइज करके देख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू लेसन द इफेक्ट ऑफ एडिमा, एलिवेशन ऑफ हेड एंड बेड में बी, हेड ऑफ द बेड में बी हेल्पफुल। एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए जो हेड साइड ऑफ द बेड है उसको अपन थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं, जिससे कि वेनस रिटर्न कम होगा और फ्लूइड शिफ्टिंग होना चालू हो जाएगा, नीचे डिपेंडेंट फ्लूइड शिफ्टिंग होना चालू हो जाएगी, जिससे अपने आप जो एडिमा हो रखी है रेस्पायरेटरी, अपर रेस्पायरेटरी एयरवे में या रेस्पायरेटरी सिस्टम से में कहीं पे भी अगर एडिमा है तो उसको अपन थोड़ा सा उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इसके बाद अर्ली इंटूबेशन टू मेंटेन एयरवे पेटेंसी बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन में डेवलप रैपिडली। तो आपको जो पेशेंट है, अगर आपको लग रहा है रेस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी हो सकती है पेशेंट को, अगर इंजरी रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है तो आपको पेशेंट को शुरू में इंटूबेट कर लेना है, ET ट्यूब लगा के वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना है, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी तो वो रैपिडली होंगी, तो अपने को उस वक्त इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अपन उस वक्त पेशेंट को इंटूबेट कर सकें। तो अपने को पहले से ही पेशेंट को इंटूबेट करके रखना है। इसके अलावा एरोजोल्ड हिपेरिन इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब। एरोलाइज्ड मतलब भाप के रूप में अपन उसको हिपेरिन देंगे पेशेंट को, ताकि कोई थ्रोम्बस या जो क्लॉट फॉर्मेशन है, क्योंकि इंजरी हो सकती है, मे बी इंजरी हो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे ब्लीडिंग की वजह से कोई क्लॉट्स, कोई थ्रोम्बस जैसी फॉर्मेशन ना हो सके, उसके लिए फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, उसके लिए अपन एरोजोलाइज्ड हिपेरिन अपन पेशेंट को प्रिस्क्राइब
करेंगे। इसके अलावा इंटूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेटर आर सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस टू पल्मोनरी इन्फेक्शन। जब अपन इंट्यूबेट करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं पेशेंट को, तो वो उनकी वजह से पेशेंट कई बार उनकी वजह से इन्फेक्टिव हो जाता है, जिसको वेंटिलेटर इंड्यूस्ड इन्फेक्शन या वेंटिलेटर असिस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो मे बी वो हो सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इन सबको अपन जल्दी से जल्दी हटाएं। पेशेंट को ज़्यादा लंबे समय तक अगर ज़रूरत नहीं है तो इन चीज़ों को अपन रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स continuous cautiously during the phase of burn care because the fluid shifts loss of fluid from large burn wounds and the patient's physiological response। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स रेस्पॉन्स अपने को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन करना था उसको अप डाउन या जो भी जैसे नीड है पेशेंट की, जैसे पेशेंट फिजियोलॉजिकली रेस्पॉन्ड कर रहा है उसका इनटेक आउटपुट चार्ट देख रहे हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ हाइपर थर्मिया, कई बार बैक्टीरिया इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया की वजह से क्या है हाइपरथर्मिया फीवर हो सकता है, तो अपने को उसको भी मेंटेन करना है। फॉर हीमोडाइनमिक मॉनिटरिंग सेंट्रल वेनस पेरिफेरल आर्टीरियल कैथेटर में भी रिक्वायर्ड। हीमोडाइनमिक मॉनिटरिंग जैसे आईवी लाइन अपन यूज करते सकते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर अपन यूज कर सकते हैं, तो वो भी अपने को एडमिनिस्टर करके रखने हैं। इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशंस की बात करें तो जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ हैं उनको हटाना है, और ताकि जो वायबल टिश्यूज़ हैं वो फिर से रिकवर कर सके, हीलिंग कर सके। जैसे कि डेब्रिडमेंट का जो प्रोसेस बताया था मैंने, डेब्रिडमेंट इसमें क्या करते हैं, जो डेड टिश्यूज़ और सेल्स हैं उनको अपन रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि जो वायबल टिश्यूज़ हैं उनको रिकवरी करने का जो चांस है वो मिल सके, वो रिकवर कर सके। तो ये सब आपको मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्टिंग फेज आफ्टर द पेशेंट कम्स इनटू द सेकेंड फेज ऑफ मैनेजमेंट इन अक्यूट और इंटरमीडिएट फेज में, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद सेकेंड थिंग, द इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन बर्न पेशेंट्स, क्योंकि बर्न पेशेंट्स आर वेरी वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। वो उनका बॉडी पार्ट्स वीक हो रखा होता है, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया होता है, तो उनको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा उनका बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड रहता है एनवायरनमेंट में ओपनली, क्योंकि वैसे तो अपनी स्किन में अपने को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन बर्न में क्या होता है स्किन जल जाती है, जिसकी वजह से जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल जो सेल्स हैं वो एक्सपोज हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपने को इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे भी फोकस करना है। इसके लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बर्न पेशेंट्स हैव हाई रिस्क फॉर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, नॉट एनवायरमेंटल इन्फेक्शन। द बर्न पेशेंट्स हैव हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस लाइक वेंटिलेटर असिस्ट इन्फेक्शंस, और जैसे अपन बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, तो वो होने के चांसेस भी होते हैं। तो अपने को फोकस रखना है किन किन चीज़ों पे, तो ये अपने को सबसे पहले द यूज ऑफ बैरियर टेक्निक सच एज ग्लव्स, गाउन, आई प्रोटेक्शन, मास्क अगर ज़रूरी है तो अपने को ये सब चीज़ें यूज करनी है जब अपन पेशेंट को डील कर रहे हैं, तो क्योंकि मे भी अपनी वजह से पेशेंट इन्फेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड पीरियोडिक कल्चर ऑफ पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स, आपको एनवायरमेंटल क्लीन रखना है, और जिन इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं आप पेशेंट की केयर करने में उनका टाइम टू टाइम आपको स्टरलाइजेशन भी करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, जो माइक्रोबियल एजेंट्स है टॉपिकल मतलब ऑन द सरफेस ऑफ स्किन अपन यूज कर रहे हैं, तो उनका भी अपने को यूज करना है। एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स एंड एंटीफंगल एजेंट्स, टॉपिकल के साथ साथ अपने को सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल एजेंट्स का भी यूज करना है, ताकि अपन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा अर्ली इंसिजन एंड क्लोजर ऑफ द बर्न वुंड, जल्दी से अपन जो बर्न वुंड हुआ है उसको इंसिजन करके और उसको क्लोज करना, ताकि अगर क्लोज कर देंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। ड्रेसिंग से या जो भी आपके पास सिंथेटिक कोई भी मटेरियल अवेलेबल है तो उससे अपन कवर करके रखेंगे, ताकि जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो कम रहे। कंट्रोल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज्ड ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो वो क्या कर देता है, जो चांसेस ऑफ
इन्फेक्शन है उनको बढ़ा देता है, रिकवरी को डिले कर देता है, जो वुंड हीलिंग है उसको डिले कर देता है। तो अपने को इसको भी कंट्रोल करके रखना है ताकि जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सके, वो अच्छे से हो सके। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ हाइपर मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स, इसको भी मैनेज करना है, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें जो अपन नहीं चाहते हैं उस वक्त हो रही होती हैं, सेल्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। सेल्स वैसे ही इस वक्त वीक हैं, तो उस वक्त अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो सेल्स में भी अल्टर हो सकती हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हाइपर मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स को भी अपने को मेंटेन करना है। जो कॉमनली होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर है कैंडिडा है, सूडोमोनास ओरिजिनस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है और एस्परजिलस स्पीसीज है। जो बर्न पेशेंट होते हैं उनमें कॉमनली होने वाले ये इन्फेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट थिंग मेडिकल मैनेजमेंट में अपने को क्या क्या फोकस करना था, रेस्पिरेटरी मेंटेन रखना था, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना था, हाइपरथर्मिया मेंटेन करना था, सर्जिकल प्रोसीजर्स जो भी कर रहे हैं वो आपको स्टेराइल यूज करने हैं साथ में। इसके अलावा आपको वेंटिलेटर एसोसिएटेड या जो भी प्रोसेस है उनसे होने वाले इन्फेक्शन से अपन प्रिवेंट करने के लिए जल्दी से हटा देंगे, अर्ली इंटूबेशन करके रखेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो, कॉम्प्लिकेशंस को नहीं होने देंगे। और सेकंड थिंग प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है वुंड कीलिंग। अब क्लीनिंग, अब आपने को वुंड को करना है क्लीन। वुंड क्लीनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वुंड के अंदर में भी इन्फेक्शन हो, में भी कोई फॉरेन पार्टिकल हो, में भी कुछ कचरा या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए अपने को वुंड क्लीन करना बहुत ज़रूरी है उसकी हीलिंग के लिए। तो वेरियस मेजर्स आर यूज टू क्लीन द बर्न वुंड। बर्न वुंड को क्लीन करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जाते हैं, जैसे शॉवर कार्ड, शॉवर जो होता है स्पीड से पानी की जो बूंदें हैं या फुहार है वो डाली जाती हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल शॉवर्स भी हो सकते हैं, बेड बाथ्स भी अपन यूज करते हैं पेशेंट को लिटा के, और उसके जो वुंड्स हैं उनको अपन जब पेशेंट को बात कराते हैं तो उसके साथ साथ उनको क्लीन कर सकते हैं। तो टैप वाटर अलोन कैन बी यूज फॉर बर्न वुंड क्लीनिंग। टैप वाटर से भी कर सकते हैं, जिसका जो वाटर का टेम्परेचर है वो 37.8 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होना चाहिए, इससे अप डाउन नहीं होना चाहिए। जब कम हुआ तो हाइपोथर्मिया हो सकता है और ज़्यादा हुआ तो मे बी वुंड इंजरी बढ़ सकती है। तो द टेम्परेचर ऑफ रूम शुड बी मेंटेन ऑन 26.6 to 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वाटर टेम्परेचर इतना होना चाहिए और रूम टेम्परेचर इतना होना चाहिए, उसके बाद अपन बेड बाथ पेशेंट को दे सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी इन वॉट एवर फॉर्म शुड बी लिमिटेड टू ए 20 to 30 मिनट पीरियड। ऐसा नहीं है कि अपन 2-3 घंटे तक बेड बाथ करवा रहे हैं या फिर कंटिन्यूसली लंबे समय तक शॉवर कर रहे हैं पेशेंट को, वो नहीं करना। लिमिटेड टाइम होना चाहिए जिससे कि अपन चिलिंग को और पेशेंट की जो एडिशनल मेटाबॉलिक स्ट्रेस है उसको अपन प्रिवेंट कर सके, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक पेशेंट वाटर के कांटेक्ट में रहेगा तो उसमें भी राइगर, चिलिंग जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो अपने को वुंड क्लीनिंग करनी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द बाथ द पेशेंट इज़ एनकरेज टू बी एक्टिव एज पॉसिबल। पेशेंट को एक्टिव रखना है, ऐसा नहीं कि वो इनएक्टिव रहे। हाइड्रोथेरेपी प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सरसाइज द extremities and cleaning the entire body. When the patient is removed from the tub after the bath, any residue adhering to the body is washed। क्योंकि अब जब आप पानी में लिटा के पेशेंट को और उसकी वुंड क्लीनिंग कर रहे हो तो वो जो डेब्रिडमेंट या डेब्रिड जो भी टिश्यू सेल्स हैं वो में भी अदर पार्ट्स पे जाके अडेयर हो सकते हैं। तो अपने को पेशेंट को जब बेड बाथ से बाहर निकालेंगे तो अपने को पूरा एग्जामिन करना, और जो अदर एरियाज़ में कहीं पे अगर कुछ चिपक गया है, अडेयर हो गया, तो उसको भी रिमूव करना है। एंड अनबर्नड एरियाज इंक्लूडिंग द हेयर मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली एज वेल। जो अनबर्नड एरियाज़ हैं, हेयर्स हैं या कोई भी बॉडी का पार्ट जो जला हुआ नहीं है, बर्न नहीं हुआ हो जिसमें, उस एरिया को अपने को रेगुलरली क्लीन करना। ऐसा नहीं है कि अपने को केवल वॉश्ड वुंड है या बर्न एरिया है उसी को क्लीन करना है। नेक्स्ट, इंटैक्ट ब्लिस्टर्स में बी लेफ्ट बट द फ्लूइड शुड बी एस्पायरेटेड विद ए नीडल और सिरिंज एंड डिस्कार्डेड। जो ब्लिस्टर्स हैं उनको अपने को रप्चर नहीं करना है। अगर अपन चाहें तो क्या कर सकते हैं, उनमें जो पानी भरा हुआ है या फ्लूइड भरा हुआ है या जो भी मटेरियल भरा हुआ है उसको सिरिंज से निकाल के और डिस्कार्ड कर सकते हैं।
Therefore, the patient is assessed for signs of chilling, fatigue, change in hemodynamic status, pain और मेडिकेशंस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सब चीज़ें भी अपने को ध्यान में रखनी है जब अपन पेशेंट को बेड बाथ करवाते हैं या जो भी वुंड क्लीनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं उसमें अपने को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। अपने को एंटीबैक्टीरियल टॉपिकली एंटीबैक्टीरियल्स यूज करने हैं ताकि अपन प्रिवेंशन कर सकें इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन हो गया तो अपन उसको ट्रीट भी कर सकें। देयर इज़ जनरल एग्रीमेंट दैट सम फॉर्म ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी अप्लाइड टू बर्न वुंड इज बेस्ट मेथड ऑफ लोकल केयर in extensive burn injury. Topical antibacterial therapy does not sterilize the burn wound. It simply reduces the number of bacteria so that the overall microbial population can be controlled by the body's host defense mechanism. अब क्या करते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल्स हैं वो क्या स्टरलाइज तो नहीं करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, जहाँ वहाँ पे बैक्टीरियाज अवेलेबल, उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, उनके नंबर को कम कर देंगे, जिससे कि जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी साथ में काम करता रहे। अगर कंटिन्यूसली बैक्टीरियाज के नंबर बढ़ते रहे, अगर इन्फेक्शन है नहीं है तो भी अपने को एंटीबैक्टीरियल थेरेपी यूज करनी ही है। अपन वेट नहीं कर सकते इन्फेक्शन होने का, तो वहाँ पे इन्फेक्शन में भी एक्सपोज्ड है, कम्प्लीटली एक्सपोज्ड है पेशेंट, तो 100% है कि कोई ना कोई बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे हो रही होगी। तो अपने को एंटीबैक्टीरियल थेरेपी यूज करनी है और अपने जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी हेल्प करनी है ताकि वो बैक्टीरियाज और जो इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ सकें। द 3 मोस्ट कॉमनली यूज टॉपिकल एजेंट्स आर सिल्वर सल्फाडायाजीन, इसको सिल्वाडेन के नाम से जाना जाता है, सिल्वर नाइट्रेट एंड मेफेनाइड एसीटेस, जिसको सल्फामाइलोन के नाम से जाना जाता है। जब भी अपन नॉर्मली भी अगर कोई बर्न इंजरी होती है तो अपन इन तीनों एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का अपन यूज कर सकते हैं फॉर द एंटी बैक्टीरियल थेरेपी के लिए। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ए टॉपिकल एजेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब टॉपिकल एजेंट्स कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो सब अपन यहाँ पे देखेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी टॉपिकल एजेंट्स किसी भी बर्न, किसी भी तरह के या कितनी भी डिग्री बर्न में अपन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि ऐसा होना चाहिए। तो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उन पे इफेक्टिव होना चाहिए, जैसे सूडोमोनास, एरुजिनोसा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और फंगस, इन सब पे इफेक्टिव होना चाहिए। इट इज़ क्लिनिकली इफेक्टिव होना चाहिए। इट पेनिट्रेट्स द स्कार बट नॉट सिस्टमेटिकली टॉक्सिक, ये जो स्कार बन जाता है, जो वुंड है उसके ऊपर जो स्कार फॉर्मेशन हो जाता है उसको तो क्रॉस कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने सिस्टम में जाके वो टॉक्सिक इफेक्ट कोज करे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट लूज इट्स इफेक्टिवनेस अलाउिंग अनदर इन्फेक्शंस टू डेवलप, ऐसा नहीं हो कि अपन ने यूज करा वो इफेक्टिव ही नहीं है, अपन तो उसके भरोसे रह गए और अदर इन्फेक्शंस हो गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए। इट इज़ ईजी टू अप्लाई एंड मिनिमाइज नर्सिंग केयर टाइम। तो ऐसा टॉपिकल एजेंट्स या ऐसे में एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स अपने को यूज करने हैं जो सभी इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हो। नेक्स्ट फॉर वुंड ड्रेसिंग। अब अपन ने वुंड क्लीनिंग कर ली, अपन ने बैक्टीरियल थेरेपी यूज कर ली, अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट कर लिया, वुंड क्लीनिंग कर ली, तो अब उसके बाद आता है वुंड ड्रेसिंग, क्योंकि वुंड कवर होना ज़रूरी है। अगर कवर नहीं रहता है तो वहाँ पे प्रेशर नहीं रहेगा, तो मे बी ब्लीडिंग हो सकती है, मे बी इन्फेक्शन हो सकता है, तो एक प्रेशर ड्रेसिंग होना ज़रूरी है ताकि अपन उसको हीलिंग के लिए प्रमोट कर सकें। तो व्हेन द वुंड इज़ क्लीन, द बर्नड एरियाज आर पेटेड ड्राई एंड प्रिस्क्राइब टॉपिकल एजेंट्स इज अप्लाइड। द वुंड इज़ देन कवर्ड विथ सेवरल लेयर्स ऑफ ड्रेसिंग। तो अपने को क्या है, वुंड को ड्राई भी नहीं होने देना है। अगर ओपन रहेगा तो मे बी वो ड्राई हो सकता है, तो अपने को एंटी टॉपिकल एजेंट्स यूज करने हैं और उसको कवर करके रखना है ड्रेसिंग से, ताकि उसको अपन ड्राई होने से बचा सकें और क्लीन रहे, ताकि वो एक, अब ऐसा नहीं है कि अपन रोज़ रोज़ बर्न वुंड को क्लीन कर सकते हैं दिन में 3 बार, तो अपन रोज़ 1 बार करके और उसको अगर ड्रेसिंग कर देंगे तो वो क्लीन रहेगा और में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं होंगे, इसलिए वुंड ड्रेसिंग करना ज़रूरी है। ए लाइट ड्रेसिंग इट्स यूज्ड ओवर जॉइंट्स एरियाज टू अलाउ फॉर मोशन। तो अगर किसी जॉइंट एरिया में बर्न हुआ है तो अपने को वहाँ पे टाइट ड्रेसिंग नहीं करनी है, लूज ड्रेसिंग, लाइट ड्रेसिंग यूज़ करनी है, ताकि अपन मोशन को
ब्लॉक ना करें, मोशन अपना कंटिन्यूसली बना रहे। ए लाइट ड्रेसिंग इज़ यूज्ड और एरियाज फॉर विच ए स्प्लिंट हैज़ बीन डिजाइन टू कन्फर्म द बॉडी कॉन्टैक्ट फॉर प्रॉपर पोजिशनिंग। कई बार क्या है, स्प्लिंट यूज करना पड़ता है, तो जहाँ पे स्प्लिंट यूज किया हो वहाँ पे भी अपने को ड्रेसिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे स्प्लिंट है वहाँ पे अपन ड्रेसिंग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी अपने को स्प्लिंट के ऊपर भी लाइट ड्रेसिंग यूज करनी। सर्कमफ्रेशियल ड्रेसिंग शुड बी अप्लाइड डिस्टली टू प्रोक्सिमल। जो डिस्टल से प्रोक्सिमल पार्ट्स है वहाँ पे सर्कमफ्रेशियल, डिस्टल मतलब दूर का और प्रोक्सिमल मतलब नियर टू द बॉडी, और डिस्टल मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अवे से डिस्टल की तरफ अपने को आना, अवे से प्रोक्सिमल की तरफ अपने को आना है, दूर से पास की तरफ, और सर्कमफ्रेंशियल ड्रेसिंग यूज करनी है। इफ़ द हैंड और फुट आर बर्न द फिंगर्स एंड टोज शुड बी wrapped इंडिविजुअली। मतलब अगर हाथों में और पैरों की उंगलियों अगर बर्न हुई तो सबको अलग अलग रैप करना है ड्रेसिंग से। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ, अगर एक साथ कर देंगे तो वो आपस में सब चिपक जाएंगी और उनको अलग अलग जो स्किन सेल्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी रिपेयर में या वुंड हीलिंग में। तो अपने को सबको अलग अलग रैप करना है ड्रेसिंग में। जितनी भी फिंगर्स हैं उन सबको हर एक फिंगर अलग से रैप होगी। Burns to the face may be left open to air once they have been cleaned and the topical agent has been applied। जो अगर चेहरे पे अपने बर्न है तो अपन उसको ओपन रख सकते हैं, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, वेंटिलेशन ज़रूरी है, तो इसके लिए अपने को खुला रख सकते हैं। पर वहाँ पे वो क्लीन होना चाहिए और उसके ऊपर जो है टॉपिकल एजेंट्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, अपने को एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स है वो यूज करने हैं। केयरफुल अटेंशन मस्ट बी गिवन टू बर्न्स लेफ्ट एक्सपोज टू एंश्योर दैट दे डू नॉट ड्राई आउट और कन्वर्ट टू ए डीपर बर्न। अब अगर आपने किसी बर्न एरिया को ओपन छोड़ा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो ड्राई ना हो जाए, तो आपको उसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी है। तो वुंड ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए आपको वुंड ड्रेसिंग करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये इन्फेक्शन से भी बचाता है ये, और फर्दर इंजरी से भी बचाता है, और साथ में प्रोमोट करता है हीलिंग को। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है वुंड डेब्रिटमेंट। वुंड डेब्रिटमेंट मतलब जो वुंड एरिया है उसमें जो डैमेज टिश्यूज सेल्स हैं उनको हटाना, उस प्रोसेस को बोला जाता है वुंड डेब्रिटमेंट। ए डेब्रिस मतलब जो डैमेज्ड टिश्यूज और सेल्स हैं उनको डेब्रिस बोला जाता है, और उस डेब्रिस को हटाने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं डेब्रिटमेंट। तो एज डेब्रिस एक्यूमुलेट्स थ्रू द वुंड सरफेस, जो वुंड सरफेस है वहाँ पे डेब्रिस एक्यूमुलेट हो जाता है, इट कैन रिटार्ड केराटिनोसाइट्स माइग्रेशन, दस डिले द एपिथेलियलाइजेशन प्रोसेस। अब क्या हो, एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, ताकि जब वुंड हीलिंग होती है तो वुंड हीलिंग का प्रोसेस आपने सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो एपिथेलियलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको जो केराटिनोसाइट्स होती हैं उनका माइग्रेशन क्या कर देता है, डिले कर देता है। इसलिए अपने को उनको काट के या सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं, नेचुरली भी कई बार हट जाते हैं, तो वो चीज़ें अपने को करनी। डेब्रिटमेंट अनोदर facet of burn wound care has two goals. First, to remove tissue contaminated by bacteria or foreign bodies, thereby protecting the patient from invasion of bacteria. ये क्यों ज़रूरी है डेब्रिटमेंट? फर्स्ट थिंग कि जो टिश्यूज़ कंटामिनेटेड है बैक्टीरिया से या किसी फॉरेन बॉडी से, तो उनको हटाना ज़रूरी है ताकि वो और जो नीचे वाइबल टिश्यूज़ हैं उनको अफेक्ट ना कर सकें। एंड सेकेंड थिंग, टू रिमूव डिविटलाइज्ड टिश्यूज़ और बर्न स्कार इन प्रेजेंटेशन फॉर ग्राफ्टिंग एंड वुंड हीलिंग। तो बर्न स्कार को या जो डेविएटेड टिश्यूज़ हैं उनको हटा के बाहर निकालना ज़रूरी है, ताकि ये ग्राफ्टिंग कर सके अपन, और ये वुंड हीलिंग को भी प्रमोट हो सके, वुंड हीलिंग भी प्रमोट हो सके। अगर अब मान लो कोई बर्न एरिया हो रखा है, उसमें कोई कपड़ा फंसा हुआ है, जैसे चिपक गया था एट द टाइम ऑफ बर्न, या कोई और ऑब्जेक्ट चिपक गया था, तो अपने को, या कोई टिश्यूज़ डैमेज हो रखे हैं, वहाँ पे पस है, ब्लड है, भरा हुआ है, तो वो सब को अपने को बाहर निकालना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो रहेंगे तो बर्न इंजरी बढ़ती जाएगी, सेल्स जो फ्रेश सेल्स जो डेड सेल्स के कांटेक्ट में आएंगी वो भी इन्फेक्ट होके और इन्फ्लामेटरी कंडीशन में चली जाएंगी और वो भी डेड हो सकती है। इसलिए अपने को उनको हटाना है। साथ में अब जब अपने को स्किन ग्राफ्टिंग करनी है तो क्लीन अगर वुंड होगा तो ही अपन स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर अपन ने
जो इन्फेक्टेड वुंड है उसकी स्किन ग्राफ्टिंग करी तो वहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. तो फॉर द ग्राफ्टिंग, फॉर द गुड वुंड हीलिंग, वी शुड डू द डेब्रिडमेंट और वुंड डेब्रिडमेंट. देर आर फोर टाइप्स ऑफ, इसमें 3 मेंशन करे मैंने, लेकिन 4 टाइप्स होते हैं, आप इसको करेक्ट कर लेना. 4 टाइप्स ऑफ डेब्रिडमेंट: नेचुरल, मैकेनिकल, सर्जिकल, एंड वन मोर इज देयर. व्हाट इज दैट? केमिकल डेब्रिडमेंट. 4 टाइप्स ऑफ डेब्रिडमेंट आर देयर: नेचुरल, केमिकल, मैकेनिकल एंड सर्जिकल. तो आप इसमें 4 कर लेना, इसमें 3 मेंशन किया है तो आप इसको चेंज कर लेना. इसमें फर्स्ट है नेचुरल डेब्रिडमेंट. अब नेचुरली बॉडी अपनी बॉडी अगर खुद से ही उन जो डेड सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको अगर रिमूव कर रही है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा या उस प्रोसेस को बोला जाएगा नेचुरल डेब्रिडमेंट. द डेड टिश्यूज सेपरेट फ्रॉम द अंडरलेइंग वाइबल टिश्यूज स्पॉन्टेनियसली. मतलब जो नीचे वाइबल टिश्यूज़ हैं उनसे ऑटोमेटिकली डेड टिश्यूज हैं वो सेपरेट होकर बाहर निकल जाते हैं. बैक्टीरियाज दैट आर प्रेजेंट इन द इंटरफेस ऑफ बर्न टिश्यूज and the viable tissues underneath gradually liquefying the fibrils of collagen that holds the scar in place. मतलब जो स्कार टिश्यूज़ हैं या जो डेब्रिडमेंट है, डेब्रिस है, उसको क्या कोलेजन फाइबर्स पकड़ के रखते हैं. तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो उन फाइबर्स को तोड़ना चालू कर देती है, जिसकी वजह से स्लोली वो स्कार टूटने लग जाता है और वो रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट, मैकेनिकल डेब्रिडमेंट. मैकेनिकल मतलब अपन फोर्स लगा के या किसी सीजर से या किसी इक्विपमेंट यूज़ करके, कोई सर्जिकल प्रोसीजर करके अपन अगर डेब्रिस को हटा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मैकेनिकल डेब्रिडमेंट. इन्वॉल्व्स यूजिंग सर्जिकल सीजर्स एंड फोरसेप्स टू सेपरेट एंड रिमूव द स्कार. अगर सीजर्स को और फोरसेप्स का यूज करके अगर अपन स्कार को काट के हटा रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? मैकेनिकल डेब्रिडमेंट. If bleeding occurs, hemostatic agents and pressure can be used to stop bleeding. अब क्या होता है, कई बार जैसे अपन काट रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वहाँ पे में भी ब्लीडिंग हो सकती है. तो ब्लीडिंग को हटाने के लिए अपने को हीमोस्टेटिक एजेंट्स यूज करने हैं और उस वुंड पे फिर प्रेशर अप्लाई कर देना है ताकि अपन ब्लीडिंग को रोक सकें. नेक्स्ट है केमिकल डेब्रिडमेंट. अगर केमिकल्स यूज करके या कोई एंजाइमेटिक एजेंट्स यूज करके, जैसे फाइब्रिनोलाइटिक्स अपन यूज कर सकते हैं, फाइबर्स को तोड़ के, और स्कार को कोई केमिकल एजेंट अगर यूज करे उस डेब्रिस को हटाने के लिए तो उसको क्या बोला जाएगा? केमिकल डेब्रिडमेंट. और पर ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो केमिकल डेब्रिडमेंट होते हैं, दे ऑल्सो हैव द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, ताकि वो केमिकल अगर रहे भी तो वो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सके. एंड द लास्ट वन इज सर्जिकल डेब्रिडमेंट. सर्जिकली अगर अपन उसको हटा रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? सर्जिकल. अर्ली सर्जिकल इंसिजन्स टू रिमूव डेविएटलाइज्ड tissues along with early burn wound closure is now being recognized as one of the most important factor contributing to survival in a patient with a major burn injury. अर्ली फेज ऑफ द बर्न अगर अपन काट के रिमूव करके हटा देते हैं उन पार्ट्स को जो बर्न है या जो डेड हो चुके हैं उनको अर्ली फेज में, अगर जैसे इमरजेंट फेज में अपन ने काट के हटा दिया था तो वो और भी अच्छी वुंड हीलिंग को प्रोमोट करते हैं. तो अग्रेसिव सर्जिकल वुंड क्लोजर हैज़ रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ बर्न वुंड सेप्सिस. जो अग्रेसिव सर्जिकल वुंड क्लोजर है वो उसकी वजह से क्या होगा, क्लोज कर देंगे अगर वुंड को काट के डेब्रिस हटा के अपन ने बंद कर दिया ड्रेसिंग करके, तो उसकी वजह से सेप्सिस होने की, एक तो बाद में बहुत मतलब 48 आवर्स आफ्टर द बर्न अगर अपन डेब्रिडमेंट कर रहे हैं या अपन ने स्टार्टिंग अर्ली में ही कर दिया था तो उसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शंस भी नहीं होंगे. ये सर्वाइवल रेट्स भी बढ़ा देता है और नेचुरल सेपरेशन ऑफ स्कार इज़ अलाउड टू. अगर इसके अलावा अगर नेचुरली हो रहा है तो वो भी हो सकता है, उसको भी अपन हेल्प कर सकते हैं. तो सर्जिकली अगर अर्ली फेज में अगर हटा रहे हैं तो वो कौन सा होगा? सर्जिकल डेब्रिडमेंट. सर्जिकल डेब्रिडमेंट इज एन ऑपरेटिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग आइदर प्राइमरी एक्सीजन या सर्जिकल रिमूवल ऑफ टिश्यूज of the full thickness of skin down to the fascia or saving the burned skin layers gradually down to freely bleeding viable tissues. या तो उसको जो फुल थिकनेस है उसको काट के हटा रहे हैं या फिर जो अपन ऊपर की लेयर्स उनको सेव या ऊपर से छील के हटा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सर्जिकल डेब्रिडमेंट.
इसके बाद नेक्स्ट आता है वुंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अपन ने कहीं और से कोई दूसरा, जैसे मान लो ये कोई एरिया था यहाँ पे बर्न हुआ था, तो अपन ने कहीं और से स्किन ली और उस स्किन को इसको डेब्रिड करके क्लीन करके वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि वुंड अंदर से हील हो सके। मे बी इसको बाद में हटाया भी जाता है और मे बी इसको परमानेंटली यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। अगर वुंड कम्प्लीटली हील हो गया और वो ऐसे थोड़ा ओड नहीं लग रहा तो अपन इसको हटा भी सकते हैं। मे बी अलग अलग टाइप्स के ऑटोग्राफ्ट हो सकते हैं, कुछ को हटा दिया जाता है, कुछ को परमानेंटली छोड़ दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन वुंड ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। तो वुंड ग्राफ्ट्स क्या होते हैं, इफ वुंड्स आर डीप और एक्सटेंसिव स्पॉन्टेनियस री एपिथेलियलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर बहुत ज़्यादा डीप और एक्सटेंसिव बर्न होते हैं तो जो ऑटोमेटिक री एपिथेलियलाइजेशन होता है वो नॉट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अपन उसको प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट की ओन स्किन को यूज कर सकते हैं कवरेज के लिए, कवर करने के लिए, जिसको बोला जाता है ऑटोग्राफ्ट। अब टाइप्स आगे मैं बताऊंगा, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ वुंड कवरेज आर टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट थिंग, अगर अपन वुंड को कवर कर देंगे तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाएगा। सेकेंड, प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ प्रोटीन्स। लॉस ऑफ प्रोटीन्स नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा तो फाइब्रिनोलाइसिस हो सकता है, फाइब्रस टूट सकते हैं, प्रोटीन्स टू डैमेज हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लॉस हो रहा है वुंड से, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और साथ में हीट लॉस थ्रू इवापोरेशन, जो इवापोरेशन के थ्रू हीट लॉस होता है वुंड के अंदर से, उसको भी अपन, क्योंकि अपन ने उसको स्किन से कवर कर दिया, अब स्किन ही है तो वो स्किन की तरह ही काम करेगी, जो कि अपने को जो नॉर्मल स्किन अपनी होती है उसकी तरह फंक्शन करेगी। तो ये सब काम अपने इजी हो जाएंगे अगर अपन ग्राफ्टिंग करते हैं तो। सेवरल मेथड्स ऑफ वुंड कवरेज आर अवेलेबल, सम आर टेम्परेरी अंटिल ग्राफ्टिंग और सम परमानेंट कवरेज इज पॉसिबल। जैसे मैंने बताया कुछ टेम्परेरी होती हैं जब तक ग्राफ्ट नहीं किया जाता है, और कुछ परमानेंटली ही होते हैं। अभी ये मे बी बायोलॉजिकल हो सकते हैं, बायोसिंथेटिक हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं और ऑटोलोगस हो सकते हैं। इनके बेसिस पे अपन इसका डिवाइडेशन करते हैं। द मेन एरियाज फॉर स्किन ग्राफ्टिंग इंक्लूडिंग द फेस। फेस पे अगर कोई बर्न हो गया है तो वहाँ पे अपने को ग्राफ्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर द कॉस्मेटिक्स एंड साइकोलॉजिकल साइको सोशल या साइकोलॉजिकल रीजन्स की वजह से। क्योंकि अगर किसी के चेहरे पे बर्न है तो वो अपने आप को एज ए गुड पर्सन या एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन कभी भी फील नहीं कर पाए, तो अपने को स्किन ग्राफ्ट के थ्रू उसको नॉर्मल इंसानों की तरह स्किन प्रोवाइड करनी है ताकि वो एक कॉन्फिडेंट लाइफ जी सके। इसके अलावा फंक्शनल एरिया जैसे हैंड्स, फीट्स एंड जॉइंट्स, उनको भी अपने को अगर ज़रूरत है तो अपने को वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग यूज करनी है। ग्राफ्टिंग परमिट्स अर्लियर फंक्शनल एबिलिटी एंड रिड्यूस कॉन्ट्रैक्चर्स या श्रिंकिंग ऑफ बर्न स्कार्स थ्रू कोलेजन मैच्योरेशन। मतलब जो बर्न श्रिंक हो जाती है उसको भी प्रिवेंट करती है, और साथ में अपने को साइकोलॉजिकल रीजन्स की वजह से और अदर रीजन्स की वजह से भी स्किन ग्राफ्टिंग करना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग। टाइप्स सबसे पहले अपन बात करें ऑटो ग्राफ्ट। ऑटो मतलब खुद का। अगर ग्राफ्ट या स्किन जो दूसरी अपन यूज कर रहे हो खुद पेशेंट के ही दूसरे बॉडी पार्ट से ली गई है, जैसे मान लो किसी को चेहरे पे बर्न था तो थाई पे से अपन ने स्किन ले ली, या एब्डोमिनल एरिया से अपन ने स्किन ले ली, तो अगर पेशेंट के खुद के ही बॉडी पार्ट से स्किन की लेयर लेके अपन उसी के बॉडी पार्ट्स कहीं और पे लगा रहे हैं, ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑटो ग्राफ्ट। इसके बाद सेकेंड है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट फॉर फ्रॉम द आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब कोई आइडेंटिकल सेम मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो उनमें क्या होता है कि उनके जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो सेम फंक्शन करते हैं, तो मे बी उसको ऑटोलोगस की तरह ही यूज करता है या ऑटोग्राफ्ट की तरह ही एक्सेप्ट करती है बॉडी, तो इसलिए उसको आइसोग्राफ्ट बोला गया है। या ऑटोग्राफ्ट और आइसोग्राफ्ट, ये अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो उसी के लिए ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट होमोग्राफ्ट, स्किन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ह्यूमन अदर देन पेशेंट। पेशेंट्स के अलावा किसी भी और होना चाहिए ह्यूमन बीइंग, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोग्राफ्ट। नेक्स्ट जीनोग्राफ्ट,
इंसान के अलावा किसी जानवर से अगर अपन स्किन ले रहे हैं और उसको ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो जीनोग्राफ्ट। और बायोसिंथेटिक एंड सिंथेटिक ड्रेसिंग, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई सिंथेटिक एजेंट यूज कर सकते हैं, नाइलॉन, सिलिकॉन, उनसे बना हुआ कोई भी ड्रेसिंग यूज करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, बायोसिंथेटिक एंड सिंथेटिक ड्रेसिंग। कई बार एग्जाम में टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट पूछता है तो इसको याद रखना। ऑटोग्राफ्ट मतलब ऑटो खुद से ही, खुद की बॉडी से ही अगर बॉडी स्किन पार्ट्स लेके खुद की बॉडी में लगाया गया है तो ऑटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट फ्रॉम द आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें अगर आपस में लेके लगा रहे हैं तो आइसोग्राफ्ट। थर्ड होमोग्राफ्ट, इंसान से ही ले रहे हैं लेकिन पेशेंट के अलावा किसी और से, जो खुद पेशेंट है उसके अलावा किसी और ह्यूमन बीइंग से अगर अपन लेके लगा रहे हैं तो होमोग्राफ्ट। और अगर किसी जानवर से जैसे पिग से, मंकी से अगर किसी और की स्किन लगा रहे हैं तो जीनोग्राफ्ट। और सिंथेटिकली यूज कर रहे हैं तो बायोसिंथेटिक और सिंथेटिक ड्रेसिंग। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, अगर खुद पेशेंट से ही लिया गया है ऑटोग्राफ्ट, अगर उसके आइडेंटिकल ट्विन से लिया गया है आइसोग्राफ्ट, किसी अदर ह्यूमन से लिया गया है एलोग्राफ्ट, और अगर किसी जानवर से लिया गया है तो जीनोग्राफ्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑटोग्राफ्ट। व्हाट इज ऑटोग्राफ्ट? ऑटोग्राफ्ट मतलब खुद पेशेंट की ही बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से अपन ने कोई स्किन लेयर ली और उसको अगर यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्टिंग रिमेन्स द प्रीफर्ड ऑटोलोगस मेथड फॉर डेफिनेटिव बर्न वुंड क्लोजर आफ्टर इंसिजन। सबसे बेस्ट और सबसे डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है अगर ग्राफ्ट कर रहे हैं तो वो ऑटोग्राफ्ट होता है, क्योंकि ऑटोग्राफ्ट के रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑटोग्राफ्ट्स आर आइडियल means of covering burn wounds because the grafts are patient's own skin and therefore not rejected by the patient's immune system। क्योंकि जो बॉडी खुद की इम्यून सिस्टम की सेल्स, इम्यून सिस्टम अगर किसी और का फॉरेन बॉडी समझ के अगर देख लेता है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। जैसे अगर किसी ह्यूमन बीइंग से ली गई है, किसी जानवर से ली गई है तो उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट। लेकिन अगर खुद के ही बॉडी पार्ट से लेके खुद के ही बॉडी पार्ट पे लगा रहे हैं तो उसको वो एज ए बॉडी सेल ही रिसीव करती है और उसको रिजेक्ट नहीं करती है। इसलिए सबसे बढ़िया और सबसे आइडियल जो ग्राफ्टिंग होती है वो कौन सी होती है, ऑटो ग्राफ्टिंग। दे कैन बी स्प्लिट थिकनेस, फुल थिकनेस और एपिथेलियल ग्राफ्ट। फुल थिकनेस पूरी की पूरी थिकनेस, अगर एपिडर्मिस और डर्मिस इंक्लूडेड है अगर वो ले रहे हैं तो फुल थिकनेस। स्प्लिट थिकनेस मतलब सीड्स में यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, जो लेयर्स होती हैं उसकी भी लेयर्स बना ली जाती हैं। जो लेयर्स होती है स्किन की, जैसे डर्मिस, एपिडर्मिस ली, एपिडर्मिस लेयर की भी 2-3 लेयर्स बना के और उसको अगर मैश की तरह यूज करते हैं, जैसे नेटवर्क की तरह अगर यूज करते हैं, जैसे अपन ने मान लो 1 mm की कोई स्किन लेयर ली, अब उस 1 mm को ही अपन ने 3 से 4 अदर मैश में तोड़ लिया या काट लिया और उसको अलग अलग करके यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करती है, स्प्लिट थिकनेस में क्या होता है, एरिया भी ज़्यादा कवर करती है। थोड़ी सी स्किन लेके अपन और ज़्यादा एरिया में लगा सकते हैं। तो स्प्लिट थिकनेस, फुल थिकनेस और एपिथेलियल ग्राफ्ट, ये तीनों तरीके के ऑटोग्राफ्ट हो सकते हैं। तो स्प्लिट थिकनेस है वो क्या करता है, मोर कॉमनली यूज़ होता है क्योंकि ये सीड्स में अप्लाई होता है और इनको एक्सपेंड कर सकते हैं अपन, जो कि कैन कवर मोर देन गिवन डोनर साइट एरिया। जितना साइट एरिया डोनर साइट था उससे ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, क्योंकि अपन इसको सीड्स में काट के और यूज कर सकते हैं। इफ़ ब्लड, सीरम, एयर, फैट और नेक्रोटिक टिश्यूज, जैसे मैंने बताया, कोई भी डेब्रिडमेंट अगर रह जाता है डोनर साइट, रिसिपिएंट साइट और ग्राफ्ट के बीच में जहाँ पे लगा रहे हैं और उस ग्राफ्ट के बीच में अगर इनमें से कोई भी चीज़ रह जाती है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ द ग्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट हो सकता है, ग्राफ्ट इन्फेक्टेड हो सकता है, जिसकी वजह से वो ग्राफ्ट भी अपन खोदेंगे और जो अपना डोनर एरिया था वो भी ख़राब और जो रिसिपेंट एरिया था वो भी ख़राब। तो इसलिए अपने को स्क्रीन डेब्रिडमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वुंड डेब्रिडमेंट बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ों का ध्यान रखना है। कल्चर्ड एपिडर्मल ऑटोग्राफ्ट एंड एपिथेलियल ग्राफ्ट होता है। इसमें क्या करता है, एपिडर्मिस को कल्चर करके और उससे एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं और उनसे ग्राफ्ट बना के अपन जो बहुत ज़्यादा बर्न एरिया आ जाए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अपन पूरी बॉडी के
टिश्यूज़ हटा के ही बॉडी पे लगा दिया। अब 90% बर्न है तो उसमें बॉडी सरफेस एरिया बहुत कम मिलेगा अपने को कि वहाँ से अपन स्किन ले सके। तो अपन कल्चर करके एपिथेलियल ग्राफ्ट बना सकते हैं और उस ग्राफ्ट को अपन यूज करके यहाँ पे पेशेंट को ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो 3 तरह के हुए, स्प्लिट फुल थिकनेस में तो पूरा का यूँ लिया और दूसरी जगह लगा दिया। स्प्लिट थिकनेस में क्या करा, जहाँ से लिया था उसकी 2-3 लेयर्स में मैसेज में उसको डिवाइड किया और फिर जो बर्न जितना एरिया लिया था, मान लो अपन ने 3 सेंटीमीटर का ग्राफ्ट लिया था, अब उसको 3-3-3 के अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो 12 सेंटीमीटर एरिया को कवर कर सकता है। और जो एपिथेलियल ग्राफ्ट्स होते हैं वो कल्चर करके अपन बनाते हैं जिससे कि जो मैसिव बर्न्स होते हैं उनमें यूज किया जा सके। अब इसके बाद बात करते हैं अपन केयर ऑफ द ग्राफ्ट साइट। जो ग्राफ्ट साइट है उसकी भी केयर करनी है, ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया, अपने को उसकी केयर करनी है। तो उसकी केयर में क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले ओक्लूसिव ड्रेसिंग आर कॉमनली यूज इनिशियली आफ्टर ग्राफ्टिंग टू इमोबिलाइज। अब ग्राफ्ट को इमोबिलाइज होने के लिए अपन क्या करते हैं, ओक्लूसिव ड्रेसिंग, मतलब उसको कम्प्लीटली कवर कर देते हैं ड्रेसिंग से। और इसके अलावा अपन स्प्लिंट भी यूज करते हैं, कई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो स्प्लिंट और उसके ऊपर ड्रेसिंग करते हैं, कई डायरेक्ट ड्रेसिंग करके भी इमोबिलाइज कर सकते हैं ग्राफ्ट को। सेकेंड थिंग, द फर्स्ट ड्रेसिंग चेंज यूजुअली परफॉर्म 2 to 5 डेज आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के जिस दिन आपने ग्राफ्टिंग किया था उसके 2 से 5 दिन के बाद आपको ड्रेसिंग चेंज करना, फर्स्ट ड्रेसिंग चेंज। और अगर जल्दी करना पड़ा क्योंकि साइंस ऑफ रिजेक्शन, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे कोई साइंस, तो जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है तो 2 से 5 दिन के बाद फर्स्ट ड्रेसिंग चेंज आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट, इफ द ग्राफ्ट ऑन एक्सट्रीमिटी इट इज़ एलिवेटेड टू मिनिमाइज द एडिमा। अगर किसी एक्सट्रीमिटी जैसे हाथों में या पैरों में अगर ग्राफ्टिंग किया अपन ने तो उस पार्ट को अपन एलिवेट करके रखेंगे ताकि वहाँ पे एडिमा को प्रिवेंट किया जा सके। और इसके बाद द पेशेंट में एक्सरसाइज द ग्राफ्ट एरिया आफ्टर 5 to 7 डेज ऑफ सर्जरी। 5 से 7 दिन सर्जरी के 5 से 7 दिन बाद पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है ग्राफ्टेड एरिया की। नेक्स्ट है केयर ऑफ द डोनर साइट। अब जहाँ लगाया था उस पार्ट को तो अपन ने केयर कर ली कि उस पर अच्छे से प्रेशर ड्रेसिंग लगा दी, स्प्लिंट यूज करके ड्रेसिंग लगा दी। 5 से 7 दिन बाद फर्स्ट ड्रेसिंग को ओपन किया, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहे कि कोई रिजेक्शन के, ब्लीडिंग के या इन्फेक्शन के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। और उस एरिया को 5 से 7 दिन बाद एक्सरसाइज पे भी डाल दिया और अगर एक्सट्रीमिटी पे है तो एलिवेट कर दिया ताकि एडिमा को प्रिवेंट किया जा सके। अब बात करते हैं डोनर साइड की, मतलब जहाँ से अपन ने स्किन ली है, जहाँ से स्किन ली है अपन ने वुंड बर्न एरिया पे लगाने के लिए, उसको बोलते हैं डोनर साइड। तो डोनर साइड की केयर में अपने, क्योंकि वहाँ पे अपन ने स्किन कट किया तो इट इज़ द क्लीन वुंड क्रिएटेड इन ए सर्जिकल एनवायरनमेंट। अपन ने सर्जिकली वहाँ पे एक वुंड बनाया है तो अपन उसको भी एज ए वुंड ही ट्रीट करेंगे। आफ्टर द डोनर स्किन एक्साइज्ड ए थ्रोम्बोस्टेटिक एजेंट सच एज थ्रोम्बिन और एपिनेफ्रिन वहाँ पे अप्लाई करना है डायरेक्टली ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग को रोका जा सके। जो डोनर साइट है वहाँ पे अपने को थ्रोम्बोस्टेटिक एजेंट्स जैसे थ्रोम्बिन और एपिनेफ्रिन यूज करना है जिससे कि अपने को जो ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा उसको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है और फ्री फ्रॉम प्रेशर रखना है। यहाँ पे अपने को ज़्यादा प्रेशर यूज नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो डोनर साइट मस्ट बी रिमेन क्लीन, ड्राई एंड फ्री फ्रॉम प्रेशर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन होमोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट जिसको कि एलोग्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, एलोग्राफ्ट, और जीनोग्राफ्ट मतलब हेट्रोग्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट और हेट्रोग्राफ्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज बायोलॉजिकल ड्रेसिंग एंड इंटेंडेड टू टेम्परेरी वुंड कवरेज। इनको टेम्परेरीली यूज किया जा सकता है जब तक कि एलोग्राफ्ट या जो कि अपन ने बात करी थी पीछे वाला जो ग्राफ्टिंग था ऑटोग्राफ्टिंग, उससे पहले अपन कुछ दिन तक, जैसे ऑटोग्राफ्टिंग रेडी हो रही है, जैसे एपिथेलियल ग्राफ्ट बना रहे हैं, तो जब तक एपिथेलियल ग्राफ्ट बन के तैयार नहीं होता तब तक अपन होमोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट यूज कर सकते हैं टेम्परेरीली वुंड कवरेज को, या अपने को केवल वुंड हीलिंग तक ही, वुंड हीलिंग प्रमोट करने के लिए ही ग्राफ्टिंग करनी है तो उसके लिए भी अपन इनको यूज कर सकते हैं। और जब वुंड हीलिंग हो जाए या आपका ऑटोग्राफ्ट तैयार हो जाए तो उसके बाद अपन इसको हटा के और वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
homografts are skin from living humans other than the patients, and xenografts are skin taken from the animals. So the body's immune response may reject them as a foreign substances. ये अपन ने किसी बाहर किसी दूसरे इंसान से या किसी जानवर से लिए तो मे भी इनके रिजेक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं. Biological dressing have several uses like in extensive burn. They provide temporary wound coverage and protection of granulation tissues until autografting is possible. जैसे कि मैंने अभी बताया, जब एक्सटेंसिव बर्न हो जाती है तो अपने को वुंड कवरेज करना ज़रूरी होता है. तो अपन या तो कोई अदर ह्यूमन की, या बहुत ज़्यादा बर्न हो गया, जैसे पेशेंट 70% बर्न है, अब उसमें खुद में तो इतना एरिया बचा ही नहीं है कि अपन वहाँ से ऑटोग्राफ्ट कर सकें. तो अपन क्या करते हैं, जब तक ऑटोग्राफ्ट जैसे एपिथेलियल या बाहर कल्चर करके बना रहे हैं ऑटोग्राफ्ट, तब तक अपन इनको यूज कर सकते हैं एज ए बायोलॉजिकल ड्रेसिंग या एज ए ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं कि अपन ने केवल कवर करने के लिए, प्रिवेंशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए अपन ने केवल एज ए ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं. एंड दे कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज ए टेस्ट ग्राफ्ट. टेस्ट ग्राफ्ट प्रिपरेशन फॉर ऑटोग्राफ्टिंग के लिए इनको एज ए टेस्ट ग्राफ्ट की पहले इनको लगा के देखा कि अगर पेशेंट की स्किन इसको रेस्पॉन्ड कर रही है या ही वुंड हीलिंग प्रमोट हो रही है तो अपन बाद में ऑटोग्राफ्ट यूज कर सकते हैं. पता चला अपन ने ऑटोग्राफ्ट कर दिया डायरेक्ट ही और वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ और ना ही वुंड हीलिंग हुई, तो अपन दूसरे जो डोनर साइट है उसको भी ख़राब कर देंगे और रिसिपेंट साइट को भी ख़राब कर देंगे. तो इससे अच्छा है पहले एज ए टेस्ट ग्राफ्ट अपन होमोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट को यूज कर सकते हैं. अगर इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं या रेस्पॉन्स कर रहा है, फिजियोलॉजिकली बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, तो बाद में अपन ऑटोग्राफ्ट यूज कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज बायोसिंथेटिक एंड सिंथेटिक ड्रेसिंग. Problems with availability, sterility and cost have prompted the search for biosynthetic and synthetic dressing. कई बार क्या होता है, अवेलेबिलिटी नहीं होती होमोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट या ऑटोग्राफ्ट की, या स्टेरिलिटी नहीं होती, या कॉस्ट इतनी नहीं है, या अपने पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है कि अपन वो सारे प्रोसीजर कर सकें. तो उस कंडीशन में अपन बायोसिंथेटिक या सिंथेटिक ड्रेसिंग के साइड जाते हैं. ये क्या करते हैं, रिप्लेस बायोलॉजिकल ड्रेसिंग एज टेम्परेरी वुंड कवरिंग. ये कुछ टाइम के लिए अपने को टाइम दे देती है कि इनको यूज करके अपन थोड़े टाइम तक पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं और बाद में जैसे ही अपने पास अवेलेबिलिटी हो अपन दूसरे मेथड जैसे कि ऑटोग्राफ्ट यूज कर सकते हैं. जो कि वाइडली यूज सिंथेटिक ड्रेसिंग है वो है बायोब्रेन के नाम से एक सिंथेटिक ड्रेसिंग आती है. उसको एक ड्यूअल लेयर नाइलॉन और सिलिकॉन का ड्रेसिंग होता है जिसको कि अपन बर्न वुंड्स पे यूज करते हैं. तो ये थे ग्राफ्टिंग के अंदर 3 तरह के बताए मैंने, कॉमनली 4 तरह के होते हैं. होमोग्राफ्ट मतलब खुद पेशेंट की बॉडी से ही खुद को लगा रहे हैं तो होमोग्राफ्ट. सेकंड होमोग्राफ्ट नहीं, ऑटोग्राफ्ट. फर्स्ट इज ऑटोग्राफ्ट जिसमें बॉडी खुद की बॉडी से ही लगा रहे हैं पेशेंट को, तो ऑटोग्राफ्ट. सेकंड होमोग्राफ्ट जिसमें ह्यूमन से ही दूसरे ह्यूमन से, पेशेंट के अलावा किसी और ह्यूमन्स बट नॉट द आइडेंटिकल ट्विंस. अगर आइडेंटिकल ट्विंस से ले रहे हैं तो आइसोग्राफ्ट, और अगर आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा किसी और ह्यूमन से ले रहे तो होमोग्राफ्ट. एंड किसी जानवर से ले रहे तो जीनोग्राफ्ट. और सिंथेटिकली नाइलॉन या सिलिकॉन से बना हुआ कोई ड्रेसिंग यूज कर रहे हैं तो बायोसिंथेटिक और सिंथेटिक ड्रेसिंग. तो गाइज ये था. इसके अंदर 1-2 पॉइंट और हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में, जैसे पेन मैनेजमेंट है, वो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड किया है. तो आज जो अक्यूट मैनेजमेंट या इंटरमीडिएट मैनेजमेंट है, इसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले मेडिकल कंडीशंस जो भी हैं, मेडिकल यानी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना या पेशेंट की को स्टेबलाइज़ करना, हीमोडाइनमिकली फिजियोलॉजिकली स्टेबलाइज करने के लिए अपन कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्रीदिंग मेंटेन करना, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना, तो वो सब करेंगे. इसके बाद अपन वुंड केयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर केयर, जिसके अंदर अपन वुंड केयर में वुंड ड्रेसिंग, वुंड क्लीनिंग, वुंड डेब्रिडमेंट एंड वुंड ग्राफ्टिंग जो चारों प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करते हैं. इसे वुंड केयर के अंदर अपन ने देखा, वुंड क्लीनिंग किया अपन ने, वुंड डेब्रिडमेंट किया, और इसके बाद वुंड ग्राफ्टिंग. तो ये सब जो प्रोसीजर्स किए अपन ने, ये सब
वुंड को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हीमोडाइनमिकली अगर पेशेंट स्टेबल हो गया है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन हो गया, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ मेंटेन हो गई है और कोई फर्दर इंजरीज़ है तो उनके लिए अपन मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद अपना जो फोकस हो जाएगा वो पूरा बर्न वुंड जो या बर्न जो एरिया है उस पर आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट फेज में अपना फोकस पूरा किस पे रहेगा, बर्न एरिया जो है उस पर फोकस रहेगा। तो ये था गाइस आज का टॉपिक, एक्यूट और इंटरमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ बर्न। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों को भी बताओ, सबको बताओ, ताकि आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू।